डायरेक्टली फार्म प्रोड्यूस से ले रहा हूं मैं, दूसरा नॉन फार्म हो गया, सो वो नॉन फार्म में आ गया। चलो वे फॉरवर्ड आते हैं, कंक्लूजन्स आते हैं, सॉरी। सो देयर कैन बी 3 or 4 different types of conclusions which we can write. First one is futuristic and positive conclusion, which is usually simple. Next we have solution, reform, recommendations, keyword based and all. ये अपने को 6 or 7 questions में use करना है. Minimum 6 to 7 questions will have a keyword or recommendation, committee based वाला recommendation. Next way forward can be, we can learn from this model, that model and all that we can say. कि अगर कोई स्वच्छ भारत का है तो we can learn from सिंगापुर मॉडल, ओल्ड एज वाला है तो नॉर्वे वाला, चाइल्ड वाला है तो किसी और का, एजुकेशन का है तो जर्मन मॉडल. सो दैट कैन बी सम बेस्ट केस स्टडीज जो अपन पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर केस स्टडीज एंड ऑल. सो बेस्ट प्रैक्टिसेस, मॉडल्स, गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड एंड ऑल. And then finally we can have a balanced opinion. In case they ask you a question, कि do you agree or negative पूछ लिया. So in that case you need a balanced opinion in such questions. So there can be only 4 types of conclusion. काट देते हैं, कोई बात. Copy paste. The box was copy pasted without changing types of introduction to conclusion. ठीक है, लिख लो इसको, अगर नहीं लिखा है तो जल्दी, या है हैंडआउट्स में, नहीं है जल्दी से लिखो. वे फॉरवर्ड में आप कमिटी लिख रहे हो, कीवर्ड बेस्ड कर देंगे, फिर 6-7 कर देते हैं, नया एकदम कीवर्ड का कंक्लूजन बेस्ड. सो 6 to 7 क्वेश्चंस में वी विल राइट कीवर्ड बेस्ड. इन 4 क्वेश्चंस वी विल राइट सिंगल कीवर्ड बेस्ड, अभी बताऊंगा मैं आगे, ठीक है. एंड इन 3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम एंड टू दैट वी विल यूज. माइक्रो डायग्राम किस में बनाना है? 4-5 questions. In 4-5 questions after introduction, in 6-7 questions normal micro diagrams between the lines के लिए उसमें यूज कर लेंगे. But there should not be consecutive micro diagrams. वो मत करना बस. For example, just after introduction you have drawn a micro diagram और उसके बाद next between the lines होगा और वो भी आपने micro diagram बना दिया. वो नहीं करेंगे बस. No consecutive micro diagrams. The rise of International Solar Alliance has strengthened the drive towards an accessible, affordable and sustainable energy adoption. How it is different than the other global alliances like OPEC and IEA? Examine the impact of ISA and global. So there can be a way forward. ये truly वगैरह हटा दिया करो बस, बाकी सब ठीक है. As the world move towards renewable energy, ISA would become a game changer institution from perspective of global energy governance and one of the most important global forums for the future. So a futuristic, positive futuristic conclusion that we have written. No, nothing complex, ekdam simple and all. Just in positive futuristic conclusion we have written. Next can be solution, reform or recommendation or keyword based. What do you understand by reverse migration? What are its various implications on the sustainability of Indian society? Briefly describe the steps taken by the government in this particular regard. So migrant workers
Now, in that case, if you haven't explained different types, you can mention skilled, semi-skilled, unskilled, etc. Form a core base of India's demographic dividend. Thus, well-coordinated policy and decentralized development will ensure the success of government measures. So that again can be an solution-oriented अपन ने conclusion लिख दिया. Then we have Election Commission of India established by Indian Constitution to ensure free and fair elections. What are the constitutional safeguards to ensure its independence and role and challenges of ECI in ensuring free and fair elections in India? So now it is talking about free and fair elections too much. And free and fair elections are the backbone of democracy. So यहाँ democracy oriented and all कुछ अपन conclusion लिख सकते हैं. That democracy critically depends upon free and fair elections and thus on the autonomy of ECI. फिर committee based डाल दो. Thus recommendations of this should be implemented to ensure ECI independence and efficiency. So वो अपन लिख सकते हैं. Studied and को काट देना. ठीक है. ये पीपीटी शेयर करा दूंगा यार मैं. These are various, I think ये पहले भी कभी कवर किया होगा. That do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? Previous year है शायद ये. Give reasons in support of your answer. So in this case, because the question is talking about GDP growth rate, inflation and all, तो eco survey का source डाल के, and as the economic survey has pointed, the focus needs to be on blue sky thinking and virtuous cycle of investment to reach 5 trillion. Because they are talking about making Indian economy in good shape. Good shape तो तभी होगा जब $5 trillion पहुंचेगा. So that can be one of the conclusions. Then Cyberdome project. So Cyberdome is a unique model of collaborative governance. So in federal वाला theme and all में पढ़ाया होगा ना 5C types of governance that we have. Collaborative governance which could be integrated with national cyber security policy to increase its effectiveness. Then reformative steps taken by the government to make PDS more system. So a keyword based आ गया. Food and nutritional security and life with dignity for the masses and improving its effectiveness is essential. फिर elaborate the policy taken by the government of India to meet the challenges of the food processing sector. Promotion of FPS. FPS नहीं लिखेंगे अपन, पूरा लिखेंगे, ठीक है? Is crucial to convert the farmers into agripreneurs and improve ease of doing agri business. Very good usage of two keywords here. Sorry? हाँ वो तू और अच्छा लिखेगा, फिर तू सेलेक्ट होगा, फिर तेरी आंसर कॉपी यहां आएगी. समझ रहा है? तो वो थोड़ा हाँ बहुत लंबा. क्या सोच के आया है? सेकेंड इंजीनियरिंग करनी है क्या? इंजीनियर है कि नहीं है? पहले तो हरकतें तो पूरी इंजीनियर वाली हैं. नॉर्मल ग्रेजुएट मतलब गुड ग्रेजुएट. हाँ नॉर्मल ग्रेजुएट. इंजीनियर्स आर नॉट नॉर्मल यार. हाउ मेनी इंजीनियर्स? आर वी एक्चुअली नॉर्मल पीपल? डू यू रियली थिंक नॉर्मल? एक साल में एग्जाम होता, इतना अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेते हो, 5 दिन में एग्जाम दे के आ जाते हो. कहाँ ये नॉर्मलिटी कहाँ है? दिस इज एबनॉर्मलिटी. मतलब आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, हमारे यहाँ तो बुक्स परचेज नहीं होती थी. So, एक बुक आता था, फिर वो स्प्लिट होता था, 6 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होते थे, फिर पढ़ते थे, एक दूसरे को पढ़ा देते, खत्म. ऐसे ही अगर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है तो चीटिंग वीटिंग होके पास हो जाना है, खत्म. तो नहीं तो कैसे होता है यार? इट डिपेंड्स अपॉन डीयू कहाँ कॉलेज. छोड़ अब तो, डोंट फोर्स मी टू से समथिंग अबाउट डीयू. चलो कीवर्ड्स एज वे फॉरवर्ड, फ्रॉम एंड टू यूज कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल का क्वेश्चन आया किसी में भी, रेलवेज में कहीं भी रेगुलेटर रिलेटेड क्वेश्चन, नेशनल हाईवे का क्वेश्चन आया, कोल का क्वेश्चन आया, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगा का क्वेश्चन आया, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगा का क्वेश्चन आया. वी कैन यूज फ्रॉम, वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. देन वी हैव फ्रॉम एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी टू कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी. ये सब डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कभी ना कभी पे, बट या वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस. ये कोशिश करेंगे एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस में अपने को यूज करना है. एंड ये बहुत ज्यादा है भी नहीं. सो यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ दिस 25-30 के आसपास में ये कीवर्ड्स अपने को याद करना है बस. एंड देन वी आर गोइंग टू कस्टमाइज देम एंड यूज देम फॉर द कंक्लूजन.
सो ये बेस्ट वे है टू फेच हाफ हाफ 1 एक्स्ट्रा मार्क्स. तो इसको अपने हिसाब से बना लेना. इन क्यूईपी आई विल कवर लॉट ऑफ दीज कीवर्ड्स, में भी 50 के आसपास में करूंगा. बट यू गाइज पिक दोज पॉइंट्स विच यू थिंक आर रिलेवेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. ठीक है, अगेन फ्यू मोर पॉइंट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, मॉडल्स एंड ऑल. हंगर परपेचुएट्स पॉवर्टी एज मच एज पॉवर्टी परपेचुएट्स हंगर. सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल बिटवीन हंगर. सो इसके आफ्टर इंट्रोडक्शन में विशियस साइकिल होना चाहिए. देन डिस्कस द स्टेटमेंट एंड विशियस साइकिल में ये मत कर देना हंगर एंड पॉवर्टी एंड दिस. यहां पे 2 पार्ट एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे आपको. ठीक है. सो गवर्नमेंट मेजर्स लाइक राइट टू फूड, इंद्रधनुष, पोषण अभियान एटसेट्रा हैव सर्व्ड टू ब्रेक द vicious cycle between poverty and hunger and put India on the path of सही पोषण देश रोशन. ये है मोदी जी. आई टोल्ड यू ना 20 मार्क्स. देखो कैसे हाफ मार्क्स देके गए तुम लोगों को. एंटी नेशनल गाइज. एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ सेडिशन. देखो क्या कह रहे हो, ये है मोदी जी. एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ सेडिशन लॉ इन द डेमोक्रेटिक इंडिया. डू यू एग्री दैट सेडिशन लॉ हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी इन द कंटेम्पररी इंडिया? Justify with suitable example. Now if you want to criticize sedition, तो you have to take the help of Supreme Court judgment. अपने नाम पे मत डालना. Supreme Court ने तो किया ही है, उसी के नाम पे डाल देंगे. So while a complete repeal of the act may not be ideal, it needs to be suitably amended and judiciously used, thus protecting freedom of speech, the very foundation of democracy. बस foundation of democracy of India, like India नहीं. ये कहां कॉन्ट्रोवर्शियल है? ये कॉन्ट्रोवर्शियल का पहले ये बता, वन थिंग एट ए टाइम. कन्हैया कुमार, तेरे को बताया था ना कि कभी कभी मार्क्स सडनली पता नहीं क्यों अचानक से कम हो जाते हैं. बाकी सब में ठीक रहेंगे, पर जहां जहां तूने कन्हैया का एग्जाम्पल दिया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम हो जाएंगे. और पता है 10% मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं. पता है ना, अभी नया नॉर्म है. इन एवरी पेपर यू शुड स्कोर एटलीस्ट 25 मार्क्स टू गेट योर अदर कॉपीज इवेल्युएटेड. तो अचानक से एक दिन निकल के आएगा कि कॉपी के मार्क्स ही नहीं पता है. कैसे कौन है कन्हैया कुमार जो उसका एग्जाम्पल देना पड़ रहा है तुझे? मतलब कौन है? पॉलिटिशियन है. पॉलिटिशियन ही तो है अब तो कांग्रेस में, विदाउट एनी स्टैंड. मतलब ऐसा थोड़ी जेएनयू से है और सीनियर है तो हम उसको अप्रिशिएट ही करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा यार. He just a politician. क्यों अपने को एग्जाम्पल ऐसा? हाउ कैन यू बी सो श्योर कि उस पर सेडिशन रॉन्ग लगा था? ऐसा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला, रिलीज ही तो किया है. ऐसा थोड़ी बोला कि नो 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 ही इज वन ऑफ द मोस्ट नेशनलिस्ट पर्सन इन इंडिया, यू शुड हैव नेवर इवन यूज सेडिशन अगेंस्ट हिम. अरे ऐसे क्रांतिकारी नहीं बनने का बाबा. और तेरी पिछली क्लास में ही बता रहा था मैं. अब कल को तो बोलेगा सिसोदिया एंड भगत सिंह आर सेम. वो तो यही कह रहे हैं ना. चल पढ़ाई कर. आइडेंटिफाई द वेरियस इश्यूज प्रिवेलेंट इन हायर एजुकेशन सेक्टर इंडिया. डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूटिलाइज ग्लोबल सिनर्जीज इन हायर एजुकेशन डेवलपमेंट. इन दिस क्वेश्चन कंक्लूजन शुड बी समवेयर कनेक्टिंग एजुकेशन विद ग्लोबल सिनर्जीज. अब वो तुम देखो, लिखो ना, है होमवर्क में लिखा है. हाँ मतलब ठीक है, मैं अभी बताऊंगा नहीं. whatever the challenges, so first you need to brainstorm what you are going to write in intro, what are the challenges which you are going to write, and then now the conclusion. So you have 3 minutes. फर्स्ट इंट्रो सोचो क्या लिखोगे, फिर पार्ट सब पार्ट सोचो, फिर 2-3-4 पॉइंट सोचो, एंड फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचो और उसको लिखो.
ग्लोबल सिनर्जीज मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रहे हैं जो हायर एजुकेशन को हम इंडिया में अलाउ कर दें, उसके लिए जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, वो इंडिया में लेके आए. सो दैट इज आवर ग्लोबल सिनर्जीज. हाँ हाँ, यस, ऑनलाइन ऑफलाइन अलाउ देम टू हैव सेम कोर्सेज शेयर करना. सो ऑल दीज प्रैक्टिसेस. चार पांच, 4 to 5. लास्ट वाला लाइन डजंट मेक एनी सेंस. बोला तो यू हैव टू कनेक्ट इट टू ग्लोबल सिनर्जीज. सो व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम, हाउ वी नीड टू कोऑपरेट विद देम. एंड ग्लोबल सिनर्जी है तो वी नीड टू एक्सपोर्ट समथिंग. नेट नॉलेज एक्सपोर्टर, नेट स्किल एक्सपोर्टर. कैसे आएगा? कंक्लूजन में तो यही लिखना पड़ेगा ना, दैट नाउ व्हाट वी नीड टू डू फॉर ग्लोबल सिनर्जीज. So there can be two examples which I gave. First is futuristic and positive. A stronger global alliance and cooperation will help India emerge as a global knowledge and skill superpower. या global knowledge and skill exporter. That we can use. Because question is connecting India with world. So our conclusion should be connecting India with world. Next can be solution or reform oriented. That should have global and local. कुछ तो कनेक्ट करना पड़ेगा अपने को. So bringing together the talent pool of global academics while creating a world class teaching and research institutions domestically. दोनों का लिंक बनाया. Will help, would empower India to re-establish itself as knowledge superpower. Now in bracket you can mention कौन सा था हमारा? Nalanda and all these things. वो अपन पुराने researchers and any other university names which you can mention if you are connecting it with the history as well. That re-establishing India as the knowledge superpower. यार ये जो NEP आई है ना, ये मेजरली उसने फोकस किया है स्कूल एजुकेशन पे. है हायर में भी है, बट मेजरली फोकस किया है स्कूल एजुकेशन पे. So या तो NEP का वो फीचर पता होना चाहिए अपने को जिसने हायर एजुकेशन को ग्लोबल कनेक्ट किया, तो या तो वो डाल सकते हैं उसके साथ में. दैट इज द राइट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ एनईपी प्रोविजन, इज द राइट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग इंडिया ए नॉलेज सुपर पावर, स्किल सुपर पावर एटसेट्रा. तो वो एक और पार्ट हो सकता है, दैट कैन बी देयर. वो तो इंट्रो है. हाँ, इंट्रो तो आइडेंटिफाइंग द वेरियस इश्यूज प्रिविलेंट इन हायर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, discuss the steps taken. So 25% or 27% is 27% is not good. तो टारगेट या कंपेयर कर दो वर्ल्ड के साथ. हाँ 50%. हाँ, that although India has reached a level of 27%, but still it is far behind the global average of 50% due to various issues.
तो वो करके डाल देंगे, एंड दैट कनेक्टिंग भी आ जाएगा वो. एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ एब्सेंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ग्लोबल रैंकिंग. वेलकम स्टेप एंड ऑल ना बड़ा कॉमन हो गया. इट इज ए वेलकम स्टेप एंड ऑल. उसकी जगह कुछ लॉजिकल कर. इट इज अ स्टेप टू मेक इंडिया ए नेट नॉलेज एक्सपोर्टर, नेट एक्सपोर्टर ऑफ स्किल एंड ऑल. वो करना पड़ेगा. और सेम सेंटेंस को 5 लाइन में तो पहुंच चुका है तू. सो नेवर एवर मेक वन सेंटेंस फॉर लेस देन 5 लाइन्स. नो. बीजेपी हायर भी कर लेगा तेरे को. वहीं जाना है. नहीं अच्छा है. चलो ऑन ही रख लेते हैं. ए कॉलेज सीनियर ऑफ माइन मैम ज्वाइंड बीजेपी व्हाट 11-12 हार्डली, बट शी हेल्प्ड द गवर्नमेंट इनटू ऑल दीज वी कॉल इट एज जुमलास. मेजरली मैम के बनाए हुए हैं कॉलेज सीनियर मैम. नो शी इज एट वेरी हाई पोजीशन, बीजेपी स्पोक्स पर्सन एंड ऑल. नाम मत पूछो. हाँ, फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली. ओके चलो. Over the past few years, India has been receiving tremendous goodwill in Afghanistan. However, India has its own set of challenges due to the present situation in Afghanistan. Discuss. IR वाला तो लगाएंगे, टेम्पलेट लगा देंगे, एंड देन कंक्लूजन बता दो बस मुझे. मैप भी बनाना चाहिए. And what is India's policy for Afghanistan? Afghan led, Afghan oriented. सेम ही है. अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ लोगे. बोलो बेटा क्या कर रहा था. Endorse but do not engage. What endorse? Talibanis. Sorry. अब वे फॉरवर्ड तो लिखना नहीं है, तभी तो कंक्लूजन लिख रहा है. चैलेंजेस एंड ऑल आ जाएगा तो वे फॉरवर्ड की जरूरत पड़ेगी नहीं. पूछ लिया ना क्या पॉलिसी होनी चाहिए. सो एनीवेज, कीपिंग डेवलपमेंट एट द कोर ऑफ इट्स एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू प्रोसीड विद इट्स एम्फेसिस ऑन अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस. दैट कैन बी सिंपल सा है. और यार जैसे ही पढ़ोगे तो कॉमन है. दैट इज अगेन वेरी वेरी सिंपल काइंड ऑफ कंक्लूजन इज देयर. वैसे भी इंडिया का अप्रोच यूजली इन वॉर टॉन एरियाज में यही रहता है. दैट एक्स लेड, एक्स ओन्ड, एक्स कंट्रोल्ड. वेदर इट कम्स फॉर श्रीलंका, इट कम्स फॉर नेपाल, whatever the question comes, because there can be a question on Madhesis, India's involvement in Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives. कहीं भी आएगा तो led, owned and controlled peace process और solution. ठीक है. Discuss the challenges faced by elderly people in India and highlight key government intervention schemes provided by elderly care. Intro. Sorry. %30% इन इंडिया 30% हो जाएगा क्या? ऐसे बढ़ाओ मत यार नंबर. तो तू कॉन्फिडेंटली बोलेगा तो ऐसा थोड़ी. आई विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग माय फैक्ट्स. Yesterday, a student sitting in the class has shown me what is written on RBI की website. Still, I didn't agree. Concepts are concepts, ना. RBI can be wrong. Even UPSC was wrong. वो UPSC was wrong ना. 2 साल पहले 2 क्वेश्चन काट दिए उसने. क्यों काटे? गलत पूछ लिया उससे. Once तो they gave a wrong statement. And in 2013 UPSC gave a wrong question. उस टाइम पे they were not agreeing to the mistakes. SLR पढ़ा है ना अपन ने. Statutory liquidity ratio. If one statement will be SLR is there to decrease the extra profit of the banks.
वुड यू मेक इट एज अ राइट ऑप्शन? वही राइट है, आज भी राइट है. Go to that question number, I think something in 2013 or 14 question. They gave this statement and still the answer is right. So concept तो concept है, वो तो फिर even if government will say this is there, I'll not agree. So anyways, so 30 नहीं है वो, 20 है. Right now कितना? 10 नहीं है, 8 to 9% है, less than single digit में है. This I'm sure 8 to 9% is there. So that will triple in absolute terms. So कितना हो जाएगा? 30-31 करोड़ के आसपास में हो जाएगा by that time. So वो हो सकता है. And what else? What other type of intro? ये जैसे जैसे क्लास बढ़ता जा रहा है तुम्हारा नॉलेज डिप होता जा रहा है. मुझे लगा था इंक्रीज होता जाएगा. इतना कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने? अब कल का होमवर्क लिखो. जितना आज मिला है ना, आप और नहीं पढ़ेंगे. ये सबका मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए, ये सबके मुझे पार्ट सब पार्ट चाहिए, और ये सबका मुझे कंक्लूजन चाहिए. कल क्या होता? कल क्लास है. कल नो क्लास है. दैट इज यू डिसाइडेड नो क्लास. माई किंगडम माई रूल्स. कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है. हु टोल्ड यू देयर इज नो क्लास टुमारो, डे आफ्टर? देयर इज अ क्लास टुमारो ऑल्सो, देयर इज अ क्लास डे आफ्टर ऑल्सो. बैच भी तो कंप्लीट करना है. कल है, पर फिर दिवाली आ जाएगा, फिर तुम अलग मूड में आओगे. अभी निपटा देते हैं. तो टुमारो इज ऑल्सो क्लास, डे आफ्टर टुमारो इज ऑल्सो क्लास. एंड इफ रिक्वायर्ड, इफ एंड इफ, तो फ्राइडे भी कर लेंगे. इफ only 5% chances, but that depends upon how much input you guys give me tomorrow. Or on Saturday also there is a class. हाँ, मंडे भी रख लेंगे. तू दुखी मत हो, यहीं तेरे पटाखे यहीं चलाऊंगा, टेंशन ना ले. उसको पता भी नहीं हो, लेके आएगा. तेरे को पता ना इलीगल है टू परचेज क्रैकर्स इन दिल्ली. इलीगल. आई थिंक जेल टर्म भी है क्या, या फाइन है बस? अरे रहेगा तो यहाँ पे यूपी से ले आ तू, टू होल्ड. अब ये तो वही हो गया कि मैं आई विल ब्रिंग ओल्ड नोट्स फ्रॉम पाकिस्तान. होल्ड, हाँ, वहीं जा सकते हो, वह क्लास यहां होगी. प्रॉब्लम ये है बस. सो ये जितने भी क्वेश्चन है, 15-17 क्वेश्चंस, आई नीड देयर इंट्रोडक्शन, आई नीड देयर पार्ट सब पार्ट्स. इफ यू कैन पुट सम टेम्पलेट, राइट डाउन दिस टेम्पलेट, यू विल अप्लाई, एंड कंक्लूजन दैट यू हैव टू राइट. समझ गए? See you guys tomorrow at 5. Not 5:30, 5.